Today, in this video, we'll continue the topic of nature of management. Earlier in this video, we have discussed about management as an art. But in this video, we'll discuss about management as science. Before that, we must know what is science. क्या होता है बच्चों साइंस? साइंस वो जो कॉमर्स के बच्चों ने नहीं ली या वो जो हमसे नहीं हुई? No. Science is a systematized body of knowledge. Science is based on principles. Science is based on its applicability. So in this video, we are going to prove whether management is a science or not. Science is established. We are not going to prove science. What we are going to prove is management as science, not science as management. Okay, let's discuss. First basis, we consider it as systematized body of knowledge. Is science a systematic body of knowledge? Yes, science is a systematized body of knowledge. कैसी knowledge है बच्चों science? Science has its own theory. Science is based on certain proven principles. So science is already proved. मतलब it is science is not based on hit and trial. कुछ तुक्का फिट नहीं है कि तुक्का लगेगा तो होगा, हो भी सकता है और नहीं भी. No. Science is a systematized body of knowledge which is proven earlier. But is management a systematized body of knowledge? Yes. How, sir, you can say that management is also a systematized body of knowledge? If you remember the feature of management which says management is continuous function. When we say management is continuous function, it includes various functions of management. बहुत सारे functions of management होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Planning, organizing, then staffing, then directing, controlling, which brings back the management cycle to planning. So being continuous is systematized. It has its own theory. It has its own proven principles. Principles given by Henry Fayol, principles given by Taylor. So management is also based on certain theories, principles, proven principles. So which we'll discuss in chapter 2. So for right now, what we can say, yes, management can also be considered as a science. Now moving on to the next principle, which says principles based on experimentation. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो एक्सपेरिमेंटेड हैं? देखते हैं जी. जब हम छोटे थे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने जाते थे, है ना, साइंस लैब्स के अंदर व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू मिक्स मेनी केमिकल्स, मेनी रिएक्शंस वर सीन, बॉन्डिंग्स वर सीन. बट वी नो management has its own theory, systematized knowledge, as well as they are based on experimentation. बार बार प्रैक्टिस करके हमें इसके प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं. तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस. अगर ऐसा नहीं था कि अगर पेड़ से ये देखा कि जी एप्पल गिर गया तो इट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नो, it's being experimented to many things. We know if anything fall, it attracts towards the gravity. Was it applied only to the apple? No, it applies to me also. मुझे कह दो भाई, थ्योरी तो लगेगी साइंस की. क्या थ्योरी लगेगी? Means it is based on थ्योरी. तो न्यूटन की लॉ थी ना. न्यूटन लॉ क्या कहता है? Anything falls attracts towards the gravity. तो ये सिर्फ एक चीज उस एप्पल पे नहीं था, सब पे था. Similarly, management principles are also based on experimentation. ये जो principles के बारे में है ना, ये हम पढ़ेंगे next chapter 2 के अंदर. Principles of management. सबसे पहले तो अगर वर्ड आ रहा है principles, होता क्या है principles? Principles are connotations. Principles are the ways. Never mix principles with methods. They are not methods. They are different. प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं गांधीयन प्रिंसिपल. यस, गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे. क्या थे? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो.
तो हमारी मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. देयर आर 2 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्सपर्ट्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. कौन कौन? हेनरी फ्योर और FW टेलर. इनसे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट वर्क भी करेंगे बच्चों. तो इट मीन्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट. अभी तक तो क्या लग रहा है हमें? मैनेजमेंट भाई साइंस है. बढ़िया है फिर तो यार. मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट साइंस, तो कॉमर्स में साइंस के मजे हो गए. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड प्रिंसिपल सेज is based on universal validity. What do you mean by universal? जो हर जगह है. फिर मतलब परवेसिव की तरह हो गया ना. Universal means everywhere, means it applied with same force. साइंस के प्रिंसिपल हर जगह होते हैं. Everywhere you go you can find science principles. ऐसा नहीं है कि साइंस का प्रिंसिपल जो न्यूटन का प्रिंसिपल था वो सिर्फ उस ग्राउंड पे लगा या गार्डन में लगा. यहाँ क्लासरूम में भी लग जाएगा. जहाँ मर्जी चले जाओ, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं. क्या हमारी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं? वी कैन से मे और मे नॉट. दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर which can be used according to the given situation. हम मतलब it's not fixed कि वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी. रिजल्ट सेम दे भी सकते हैं, नहीं भी. एक एग्जांपल लेते हैं. एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अब ये ऑर्डर क्या होता है ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी रेफरेंस थोड़ी सी मैं यूज करूंगा. ऑर्डर मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ 3M: men, मटीरियल, मशीन. सही चीज सही जगह पर. सर ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल क्यों नहीं है? भैया अगर मैं ऑर्डर को फॉलो करता हूँ तो मेरे लिए अप्लाई होगा. इफ आई एम नॉट फॉलोइंग मीन्स इज नॉट अप्लाई. कई जगह पर तो हर चीज़ देखो, तुम्हारी अकाउंट्स की बुक कभी तुम्हारी स्कूटी में रह जाती है ना. कभी अकाउंट्स की बुक बैग में तो पहुँचती नहीं, स्कूल तो लेके नहीं आते हम. मैक्सिमम टाइम वी ड्रॉप दैट. क्यों? प्रिंसिपल. अब यहाँ पर क्या लग रहा है देख रहे हो? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर उनके लिए है जो अप्लाई कर रहे हैं. It's not for those who are not applying. What it says कि principles or what we say universal validity, principles of management or management techniques, they are not same as science. Science हर जगह apply होती है और same result देती है. Our management principles or management gives same as मतलब रिजल्ट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी. मे और मे नॉट बी सेम. सो व्हाट वी कंक्लूड दैट दिस यूनिवर्सल वैलिडिटी इज अप्लाइड इन साइंस बट नॉट अप्लाइड इन मैनेजमेंट. सो व्हाट वी कंक्लूड, मैनेजमेंट इज सॉफ्ट साइंस. मतलब मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट साइंस, मैनेजमेंट इज इम्परफेक्ट साइंस. तो जो मैनेजमेंट है वो पार्शियल साइंस है, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ नहीं है. सो वी कंक्लूड विद कि मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस, नॉट अ परफेक्ट साइंस. तो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल डू, विल डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. ठीक है. तो नेचर में 3 टॉपिक्स हैं बच्चों. कौन कौन से? मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो हमने पढ़ा था. यस, मैनेजमेंट इज परफेक्ट आर्ट. बट अभी हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस, इम्परफेक्ट साइंस, इम्प्योर साइंस, इनकम्प्लीट साइंस. ओके. सो